As you all know, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is 75 years of India's independence. So, it is a great pleasure for me, Dr. Renu Soti, Associate Professor, Department of Commerce, to welcome you all, especially our Principal Sir, Professor Praveen Garg, our star child of the day, Ashish Neeraj, our all respected colleagues and dear students. Today, we all have gathered here online as Alumni Association of Swami Shraddhan College has given us, the Department of Commerce, to invite our illustrious alumnus, Mr. Ashish Neeraj, to share his experience with all of us. On this occasion, I want to thank our respected, hardworking, and motivating Principal Sir, Professor Praveen Garg, who always supports and encourages us in organizing various activities for the benefit of the students. Now, I would like to invite our Principal Sir to say a few encouraging words. Professor Praveen Garg. Sir, It is a great pleasure that after 2 weeks we have started just one more alumni talk, and our prestigious alumni from the Department of Commerce, Ashish Neeraj, is with us to tell us, to enlighten us, I should say, his journey from Swami Shraddhanand College to the Department of Revenue, I should say, or Chartered Accountant, and most importantly, this GST boards. So I think, although there is only one dream for the commerce students to go into the field of either in the MBA or chartered accountancy. I don't know much about. I think I am using the same accurate words: chartered accountancy or such kind of chartered accountant, and some disciplines in the MBA. So I wish he will put more light, more disciplines for other students also who are not from commerce stream, art students and science students also. I have seen many science students also who have shifted to this commerce department, particularly chartered accountants from the engineering and medical streams also. So beside this, he will try to make our students aware how if even if they do not get a proper formal degree of chartered accountant, how they can start their startups, their own professions, their own expertise in the emerging field of GST and another taxation systems, another excise and revenue systems where they can approach to get their expertise in this, I should say, competent in this competent world. So further also many more knowledgeable lectures from Ashish ji we are expecting, and our students should be getting great help from our alumni to enter into, I should say, new fields. They should not pinpoint to only this chartered accountant, where I have seen many after 12th they start moving for such examinations and then leave the college also, join SOL, etc. due to some this क्या कहते हैं internships. They do not get time for college. They do practical trainings for this accountancy courses. So beside this, they should graduate, and after graduation, many avenues should be there for commerce students. So Dr. Ashish ji will put his wisdom and light, enlighten us for such courses, such futures, such paths, I should say, because if you choose a path with the determination and devote some time, you get success. There is no problem for that. So just initiation or path showing the way to show the actual path is main important.
and it should be focus of the great experts, mentors, teachers to show the right path, and then it comes to the our students who with hard work and determination can get any goal. There is no problem in that. With these words, I again thank Department of Commerce, Renu Sopti ji, Chanchal Madam, Jalwani ji, and coordinator for this alumni meet, Dr. Archana ji, and her colleagues who are participating in this, and Ashish ji also, who has given his valuable time for this talk, for his college only, and to enlighten the students of his college. With these words, I think I wish our students will be benefited by his talk, and they will get energy and will some path for the future. With these words, I again return back to Renu Sopti Madam to proceed further. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much for your kind and motivating words. Now, I also thank Dr. Archana and Dr. Namrata, who are the convener of Alumni Committee, and their entire team for helping us to meet many of our eminent alumni. From their enriching experiences of struggle and success, we all get benefited and motivated, especially our dear students, who get encouragement and guidance for making their career choices and climbing the stairs of success. In this series of alumni meeting, today, Commerce Department has invited Mr. Ashish, who is a successful practicing chartered accountant. As chartered accountancy, rightly said by Professor Praveen Garg, is the most sought after course and a cherished dream for almost every commerce student. I'm sure all our students will be greatly benefited after listening to his story from struggle to success. With his vast experience, he will also guide our students how to do fairly well in CA exams and in turn achieve their goal. I'm thankful to the Alumni Association for giving our department a chance to invite our worthy alumnus so that he can share his experience and journey with all of us. अब मैं अपनी को कन्वीनर मिस चंचल से आग्रह करूंगी कि वो श्री आशीष नीरज का सभी से परिचय करवाएं। मिस चंचल। Thank you, ma'am. Good morning, respected principal sir, all my worthy colleagues and dear students. Now, I would like to give a brief introduction of our today's guest, CA Ashish Neeraj ji. आशीष नीरज जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनके ऑफिसेज दिल्ली, गुरुग्राम, रांची में हैं ASN एंड कंपनी के नाम से। आशीष जी कार्यकारिणी सदस्य हैं भारतीय वित्त सलाहकार समिति दिल्ली के, जो कि भारत की प्रमुख आर्थिक संस्थानों में शामिल है। उनका बचपन से ही साहित्य यानी कि लिटरेचर में इंटरेस्ट है और 11 साल की उम्र से इनकी कविताएं हिंदी अखबारों में छपनी स्टार्ट हो गई। आशीष जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयं सेवक रहे और 13 वर्ष की उम्र में पटना के बड़ी पतन देवी सायन शाखा के गण शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। आशीष जी ने ग्रेजुएशन ईयर 2004 में की कॉमर्स डिपार्टमेंट स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से। जीएसटी में इनका विशेष ध्यान रहा है और आज ये विभिन्न बैंकों, सरकारी संस्थाओं, प्राइवेट और अंतरराष्ट्रीय संस्था का सीए के रूप में कार्य देखते हैं। फरवरी 2020 में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इन्हें स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट किया गया। इन्होंने जीएसटी के विषय पर स्पीकर के रूप में विभिन्न सेमिनार और वेबिनार में अपना वक्तव्य दिया है। आशीष जी कर्ण महासभा में जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है जिसके देश और विदेश में सदस्य हैं। अब मैं आशीष नीरज जी को इनवाइट करती हूं कि वो अपना एक्सपीरियंस हम सब के साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।
वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस पथ में बिखरे सूल नहीं। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल नहीं। जयशंकर प्रसाद जी के इन शब्दों के साथ मैं आप सबों का, विशेषकर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रवीण गर्ग सर, डॉक्टर रेणु सोप्ती मैम, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर जलवानी, डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर सकांक्षा, मिस चंचल, आप सबों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सबों ने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया है और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया है। क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकता हूँ? Yes, yes, Ashish. मेरा स्क्रीन विजिबल है मैम? Yes, yes. ओके। जो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसे मैं अपने दो पार्ट में मैं रखना चाहूँगा। पहले पार्ट में मैं बिहार से लेकर दिल्ली तक की अपनी जर्नी बताना चाहूँगा कि कैसे एक सिंपल बैकग्राउंड से मैं दिल्ली पहुँचा और उस रास्ते में मैंने क्या क्या किए, ताकि जो हमारे जूनियर्स हैं उन सबको एक मोटिवेशन मिल सके कि नहीं, आप एक साधारण जगह से, साधारण बैकग्राउंड से आकर भी अगर चाहें, आप में स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में मैं अपनी जर्नी लगभग 20 मिनट में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं जो अपने छात्रों के लिए जो हमारे जूनियर्स हैं उन्हें सीए करने से रिलेटेड और सीए और कॉमर्स फील्ड के जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, और उस एग्जाम्स को कैसे क्लियर किया जाए उसके बारे में मैं अपने इनपुट्स दूंगा। इंट्रोडक्शन तो जैसे कि मेरे बारे में इंट्रोडक्शन कहा जा चुका है, तो इस पर मैं अपना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूंगा। मेरी यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहले मैंने ईयर लिख दिया है, ताकि मैं अपने बचपन से अब तक की जर्नी आपको बता सकूं। ये 1996 का एक न्यूज़पेपर कटिंग है कि जब मैं 12 साल का था और उस समय में स्वतंत्रता पे मेरी एक कविता अखबार में छपी थी। ये उस अखबार की क्लिपिंग्स है। दिल्ली आया मैं। दिल्ली आने के बाद 99 में मैंने 10th किया और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने नोएडा में आरडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और यहाँ से मेरी जो कॉमर्स की जर्नी है वो स्टार्ट हुई, क्योंकि 10th तक तो, मैट्रिक तक तो हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ध्यान था। तो यहाँ पे मैं अब कुछ आपसे सर्टिफिकेट शेयर करूँगा कि मैं कहाँ कहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। जैसे ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है दिल्ली पुलिस फाउंडेशन का। एक अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हुई थी जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। एनटीपीसी के द्वारा जब मैं स्कूल में था 2001 में 12 में, उस समय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला था। जब मैं कॉलेज में था स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में, तो अपने कॉलेज की टीम को मैं विभिन्न इंटर यूनिवर्सिटी एंड इंटर कॉलेज डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, रिप्रेजेंट करता था। कितनी बार हम लोगों ने जीता भी। उस समय में काफ़ी ऑर्गेनाइज नहीं था और स्मार्टफोन्स नहीं थे, बट फिर भी मैं कोशिश करता था कि मैं हमारे कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन अधिक से अधिक जगह हो, क्योंकि नॉर्मली नॉर्थ कैंपस का ही ज़्यादा प्रेजेंस रहता था, बट हम लोगों ने कोशिश की थी कि नहीं, हमारे कॉलेज का भी हर जगह हो। तो ये जैसे आप देख सकते हैं मिरांडा हाउस डिबेटिंग सोसाइटी का है। जब 2002 में भारत डच पार्टनरशिप के 400 साल हुए थे, तो रॉयल नीदरलैंड एम्बेसी ने एक सेमिनार किया था फिक्की ऑडिटोरियम में, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में, जिसमें उन्होंने विभिन्न बिजनेसमैन और अलग अलग तरीके के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ कुछ छात्रों को भी इनवाइट किया था। तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने अपने विचार रखे थे। हंसराज कॉलेज में 2003 में जब मैं सेकेंड ईयर में था, उसमें मैंने उसके डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। जब
2003 में ही जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय में एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया जा रहा था। तो उसमें जो पहला उसका समिट हुआ था, उसमें हुडको में, उसमें बहुत तरीके के लोग आए थे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग। उसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित किया था। उसमें मैं एज डेलीगेट शामिल था। उस समय में मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का छात्र था। फिर ये करने लगा 2004 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर सीए में एडमिशन लिया। 2006 में मेरी इंटर हुई और फिर मैंने आर्टिकल स्टार्ट की। तो ये सीए भी मैं डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। 2010 का एक ये छोटा सा एक मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरे फाइनल एग्जाम से पहले मैंने अमिताभ बच्चन जी को ट्वीट किया था कि मेरे एग्जाम अरे होने वाले हैं, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। ने मुझे पर्सनल रिप्लाई किया था, गुड विशेस फॉर द सीए एग्जाम, मे यू बी द टॉपर। तो ये मेरे बहुत करीब है ये ट्वीट, क्योंकि इतने बड़े हस्ती से डायरेक्ट ट्वीट पाना ये मतलब मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती रही थी। 2010 में सीए बना। क्लास 6 में जब मैं था तब मैंने यह निश्चय कर था कि मुझे सीए करना है। और उस समय मतलब 95 96 से लेके 2010 में जब बना, तो वो बचपन से ही एक सपना था कि नहीं, कैसे भी मुझे सीए बनना है। तो सीए बनने की जो मेरी जर्नी है, उस सीए बनने की जो मेरी जर्नी है, वो बहुत उतार चढ़ाव के साथ रही, जिसके बारे में सीए के विषय में मैं लास्ट सेकंड पार्ट में आऊँगा, इसके कोर्स के बारे में और इसके विभिन्न अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो यहाँ पे मैं 2010 में सीए बना। मेरे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैं अपनी डिग्री ले रहा हूँ। मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट रहती थी। तो दलाल स्ट्रीट बीएससी के द्वारा दलाल स्ट्रीट जर्नल, बीएससी के द्वारा दलाल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टॉक मार्केट चैलेंज किया गया था, जिसमें वो लोग एक डमी पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहते थे, और उसमें मुझे रिटर्न्स के हिसाब से प्राइज मिला था उस डमी पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैंने अपने थिंकिंग के आधार पे जो पोर्टफोलियो बनाया था। तो ये वहाँ से मुझे दलाल स्ट्रीट जर्नल से बीएससी के द्वारा मैगजीन था, उससे मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। ये 2013 का की तस्वीर है, जहाँ सत्याग्रह मूवी के टीम के साथ मैं हूँ। यहाँ अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल वगैरह आप देख सकते हैं। ये डेढ़ सिक्किया की टीम के साथ माधुरी दीक्षित जी हैं मेरे आगे, नसरुद्दीन शाह। 2016 में पेटीएम के सीईओ विजय शेखर जी से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। विजय शेखर शर्मा, उनके साथ मेरी तस्वीर है। 2017 में भारत के उस समय के जो टूरिज्म मिनिस्टर थे, अल्फोंस कन्नमनाथन, उनके ऑफिस में ये मेरी तस्वीर है। 2018 में एज ए स्पीकर ऑन जीएसटी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई 2000, जैसे मैंने 2010 में सीए बनने के बाद ही प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दी थी और मैं डिफरेंट तरीके के काम देख रहा था, बट जीएसटी आने वाला है ये 2014-15 से ही लोगों को पता चल गया था, उसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही थी। तो जीएसटी को मैंने करियर देखा कि नहीं, क्योंकि हम अगर मान लीजिए मैं देखूँ डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए वैट था, सर्विस टैक्स था, इन सब में जो भी हमारे सीनियर्स थे वो काफ़ी सालों से थे, ठीक है। तो वो एक उनका एक्सपीरियंस के चलते उनके पास हमेशा अपर हैंड होता था। बट जीएसटी के बारे में जो मेरा ख्याल था कि नहीं, जीएसटी के लिए जितने भी लोग हैं, वो भले ही 25 साल पुराने सीए हों या कोई फ्रेशर सीए हो, जीएसटी सबके लिए नया है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मुझे जीएसटी में अपना एक्सपर्टीज बनाना है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ, उसके लॉन्च होने से पहले मैंने 42 सेमिनार फिजिकली जाके अटेंड किए थे दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग पार्ट्स में, ताकि मैं जीएसटी को इस तरीके से समझ सकूं कि जब जीएसटी आए तो मैं किसी से भी कम नॉलेज नहीं हो मेरी। तो जीएसटी पे मेरा काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि मैं जीएसटी को एज ए करियर मुझे आगे लेके चलना है, और इस तरीके से मैंने जीएसटी पे अपना फोकस किया। तो ये 2018 की एक वेबिनार की सेमिनार की तस्वीर है, जहाँ पे मैं एज स्पीकर बोल रहा हूँ।
ये 2018 में बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी उस समय में थे मुरलीधर राव जी, उनके साथ मेरी तस्वीर है। विनोद नारायण झा जी, ये पीएचडी मिनिस्टर थे बिहार के, बिहार निवास में, उनके साथ मेरी तस्वीर है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कविताओं में भी रुचि है, तो एक मैंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पे कविता लिखी थी, वो मैंने डाली है। एक लाइन कुछ सुनाना चाहूंगा। हाँ जी, मैं आपको कहने ही वाली थी आशीष कि जी। हम एक कविता जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जरूर जरूर। मैं ये वाजपेयी जी के पुण्य स्मृति में मैंने ये कविता लिखी थी। अब की बारी अटल बिहारी, यह हम सबका नारा था, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह, संपूर्ण राष्ट्र का दुलारा था। 25 दिसंबर को अवतरित हुआ था, राष्ट्रवादिता की ओर प्रस्थान किया, परमाणु परीक्षण का आदेश देकर भारत की शक्ति का प्रमाण दिया। लाहौर तक बस यात्रा की थी, क्योंकि प्रथम लक्ष्य भाईचारा था, पर कारगिल में दांतों चने चबवाए जब घुसपैठियों ने ललकारा था। संयुक्त राष्ट्र में सुदृढ़ भाषण से दिया था विभिन्न शक्तियों को दस्तक, अश्रुपूरित हैं आज हम सब भारतीय, और सभी हैं अब नतमस्तक। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू मैम। ये मतलब जिस दिन वाजपेयी जी के पुण्य स्मृति में मैंने ये लिखा था। ये मेरी एक तस्वीर है पद्मश्री हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। एक कुछ टाइम पहले एक, चूंकि हम लोग बिहार से हैं और मैं मैथिली क्षेत्र से हूँ, तो एक काफी जगह, चूंकि वो अष्टम सूची में है संविधान के, तो एक काफी जगह बातें चल रही थी, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट मैथिली को भी, जब चूंकि साउथ इंडियन लैंग्वेजेज हैं, तो उस तरीके मैथिली को भी एज ए सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाए। तो उस पर एक मीटिंग हुई थी हिंदी भवन नई दिल्ली में, उसमें मैं अपने विचार रख रहा हूँ। ये सीपी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ मेरी तस्वीर है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक मैटर्स के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये मेरी उनके साथ तस्वीर है। सर्विस टैक्स जिन्होंने भी पढ़ा होगा, या जीएसटी जिन्होंने भी पढ़ा होगा, उन सब ने अशोक बत्रा सर का नाम सुना होगा। तो ये मेरी तस्वीर अशोक बत्रा सर के साथ एक सेमिनार देते हुए है, जहाँ पे अशोक बत्रा सर भी स्पीकर थे, मैं भी स्पीकर था, और रोहित वासवानी सर स्पीकर थे। तो ये उसकी जीएसटी से रिलेटेड एक सेमिनार की तस्वीर है। मुझे एक कवि सम्मेलन में एक कवि के रूप में मुजफ्फरपुर बिहार में बुलाया गया था, मैथिली कवि सम्मेलन में, तो उसकी ये तस्वीर है। दिल्ली में दत्तोपंत हेगड़े भवन में एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसकी ये तस्वीर है। 2020 में जब कोरोना आया, तो उसके बाद काफी वेबिनार्स होने लगे, तो मुझे काफी जगह एज होस्ट जो है आमंत्रित किया जाता था। ये एक जैसे एक वेबिनार हुआ था, रेलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन कंटेम्परेरी सिनेरियो ग्लोबल पीस। तो इसमें देश विदेश के स्पीकर्स थे। जो चीफ गेस्ट थे वो अरुण गांधी एंड तुषार गांधी थे। अरुण गांधी जी महात्मा गांधी के पौत्र हैं, और तुषार गांधी जी उनके पपौत्र हैं। तो ये पहली बार हुआ था कि अरुण गांधी जी और तुषार गांधी जी दोनों एक ही वेबिनार में एक साथ आए हों। तो इन सब ने अपना महात्मा गांधी जी के, क्योंकि महात्मा गांधी जी के विचारों से मैं काफी प्रभावित रहा हूँ, तो उस पर मैंने अपना मतलब काफी काम किया है। तो ये उनसे रिलेटेड मैंने काफी वेबिनार किए थे। उसके बाद ही सेम टॉपिक पे उसके कुछ टाइम के बाद एक और वेबिनार हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, वो हमारे साथ एज स्पीकर इकट्ठा हुए थे। काफ़ी सारे आईएएस और अलग अलग लोग भी थे। तो एक किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ एक वेबिनार में होना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। उसके बाद विभिन्न फोरमों पे मैं जाता रहा। ये एक फोरम पे मैं करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये 30 अगस्त 2020 को मैंने एक वेबिनार दिया था। एक न्यूज फॉर ऑल करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे कोरोना काल में उपजे वित्तीय समस्याओं की जानकारी और निदान पर चर्चा के लिए इनवाइट किया था। ये कवि सम्मेलन की तस्वीर है, जहाँ पे मुझे एज ए कवि बुलाया गया था। मेरा इंटरेस्ट चूंकि काफ़ी चीज़ों में रहा है, तो एक लिपि है जिसे कैथी कहते हैं,
जैसे हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो पुराने जमाने में भारत के काफी, खासकर मध्य भारत के क्षेत्रों में कैथी लिपि की प्रधानता थी। तो मैंने कैथी लिपि में भी जो पूरी सीखी हुई है और उससे रिलेटेड ये मेरा प्रमाण पत्र है। मैं कैथी में कुछ भी लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, जो कि एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जैसे आप कहीं कहीं जाते होंगे तो लेखों में आपको मिलता होगा कोई लैंग्वेज लिखा हुआ जिसे नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं, उसमें से काफी कुछ कैथी में भी होता है, तो उसे मैं पढ़ लिख सकता हूँ। ये गुरु प्रकाश जी हैं, अभी आप इनको आज तक वगैरह पे देखते रहते होंगे, बीजेपी के यंगेस्ट नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। इनके साथ ये मेरी तस्वीर है, इनसे मेरा काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। अमेठी संग्राम एक बुक आई थी जिसको लिखा था अनंत विजय जी ने। अनंत विजय काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती, जो कि बहुत प्रसिद्ध संस्थान है, संघ से रिलेटेड है, तो उसमें इस कार्यक्रम का संयोजन करने का जो है मुझे मौका मिला था। भारतीय वित्त सलाहकार समिति, जैसा कि कहा कि वहाँ मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हूँ। इससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर से पहले मैं भारतीय वित्त सलाहकार समिति के सोशल एंड फैमिली इवेंट्स ग्रुप का को कन्वीनर था। तो वहाँ पे ही मुझे एक जीएसटी के टॉपिक पे एज स्पीकर बुलाया गया था, ये उसका सर्टिफिकेट है। ये संजय मयूख जी हैं, अभी भाजपा के ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मीडिया के को इंचार्ज हैं, इनके साथ मेरी तस्वीर है। ये एक मैंने वेबिनार किया था उद्यमिता और रोजगार, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर, क्योंकि नॉर्मली लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद जॉब ढूंढने लगते हैं, तो मास्टर्स और प्रोफेशनल डिग्री लेने से क्या क्या फायदे हैं, इस पे जो सेमिनार किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि 3 वाइस चांसलर एक साथ थे, प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जो कि नव नालंदा के वाइस चांसलर, प्रोफेसर प्रभात लाभ रंजन जो कि डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के वाइस चांसलर, और एक नेपाल के यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर मेरे साथ थे। तो इस पर मैंने उच्च शिक्षा और रोजगार पे वेबिनार किया था। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल मैमफिटला समिट हुआ था, जिसको आयोजन में कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया जर्मनी जो है वो उसमें प्रमुख आयोजकों में एक था। तो उसमें मुझे एज ए स्पीकर इंटरनेशनल मिथिला समिट में सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये फिर मेरी एक और कविता है। एक और मेरी कविता जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे भाई थे उनके विषय में है, कि जब टोक्यो ओलंपिक में हमारा कैसा प्रदर्शन रहा, उसके बाद मैंने लिखा था। इसके भी 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जरूर जरूर। भाला फेंका जब नीरज चोपड़ा ने, खुश हो गया देश का कोना कोना। आखिर 120 सालों के बाद एथलेटिक्स में भारत में आखिर 120 सालों के बाद जीता एथलेटिक्स में भारत ने सोना। कुश्ती का भी खेल है बड़ा निराला, एक पर एक पहलवान इसमें भैया। रजत पदक जीतने वाला अद्भुत खिलाड़ी है श्री रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू की बात न पूछो, उठा लिया 205 किलो का भार। रजत पदक जीतकर उन्होंने चकवाया अच्छे अच्छों को हार। 40 वर्षों से खाली थी हॉकी खेल में भारत की झोली। कांस्य दिलवाने में प्रमुख रहे श्रीजेश जो हैं टीम के गोली। बहुत कठिन खेल ओलंपिक, मुश्किल है पहुंचने की सड़क। बैडमिंटन में पीवी संधू ने दिलाई देश को कांस्य पदक। मुक्केबाजी बहुत निडर खेल है, बहता इसमें बहुत खून पसीना। कांस्य जीते हम इस खेल में भी, जीतने वाली रही लवलीना। जश्न मनाएं सभी ओलंपिक का, खाएं सभी लड्डू और बुनिया। कुश्ती में जिसने कांस्य दिलाया, नाम है उसका बजरंग पुनिया। अदिति अशोक और महिला हॉकी, भले ही गए हों पदक से चूक, परंतु अपने विश्व स्तरीय खेल से दिखा दी उन्होंने जीत की भूख। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने रोशन कर दिया भारत का नाम। 7 मेडल जीतने वाले देश के अद्भुत खिलाड़ियों को मेरा प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबले जी के साथ एक कार्यक्रम में मेरी तस्वीर है।
अब मैं, ये तो मेरी जर्नी थी, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। आशीष, मैंने आपकी एक पोयम देखी थी, आपने श्री नरेंद्र मोदी जी पर भी लिखी थी। यस मैम, यस। जरूर, वो भी आप हमें जरूर सुनाएं। यस मैम, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, मैं 2 मिनट में उसको भी सुना दूंगा। हाँ जी, हाँ जी जी। जी जी। जो मैम, मैं मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो हाँ, मैं हाँ, आप एंड में सुना यस दीजिएगा, एंड यस में हाँ यस जी। यस। फिर यहाँ पे अब मैं बताना चाहूंगा कि एज ए सीए मैंने किस किस क्लाइंट्स को हैंडल किए हैं। हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैचुरी ब्रांच ऑडिट किया है, 6 ब्रांचों का। इंडियन बैंक है, उसके 12 ब्रांचों का अब तक हम लोगों ने स्टैचुरी ऑडिट किया है। बैंक ऑफ इंडिया में हम लोगों को स्टॉक ऑडिट का काम मिला हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में रेवेन्यू ऑडिट हम लोग करते हैं। इलाहाबाद बैंक के कॉन्करेंट ऑडिटर हम लोग हैं। इंडियन बैंक के कॉन्करेंट ऑडिट हम लोगों ने किया हुआ है। MUFG जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है, वहाँ पे हम लोगों ने 2 साल कॉन्करेंट ऑडिट किया हुआ है। झारखंड ग्रामीण बैंक है, चूंकि हम लोगों का रांची में भी ऑफिस है, तो वहाँ उस झारखंड ग्रामीण बैंक का पूरे बैंक की जो GST और TDS है, वो शुरुआत से 2017 से हम ही लोग देख रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स है, इसका मैंने 3 साल फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, क्योंकि उसका एक रिपोर्ट जाता है, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने इस पे काम किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल का 1 साल मैंने स्टैचुरी ऑडिट किया है, जो कि दिल्ली इंडिया के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक है। हम लोग काफ़ी जगह देखते होंगे, जब हम लोग रेड लाइट्स वगैरह पे रुकते हैं, तो तेल बचाने से रिलेटेड, पेट्रोल ईंधन बचाने से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। वो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा किए जाते हैं, जो कि एक सरकारी संस्था है। उसका 3 साल से हम लोग ही ऑडिट कर रहे हैं। दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, जो कि दिल्ली में जितने राशन की से रिलेटेड सप्लाई हो, प्लस दिल्ली में जितने सरकारी शराब के दुकान थे, उन सब का, वो सब दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के अंतर्गत अधिकतर आते थे, तो उसका GST, वैट और TDS कंसल्टेंसी हमारे पास रहा है। एक क्रॉस सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग है, उसकी TDS कंसल्टेंसी हमने की है। जिंग बस टेक्नोलॉजी है, अभी बस वगैरह से रिलेटेड इनका बहुत अच्छा सर्विस है पूरे इंडिया में, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कंसल्टेंसी की है। तो ये कुछ नाम हैं, मतलब वैसे तो हम लोगों को काफ़ी क्लाइंट्स हैं, बट उसमें से जो कुछ प्रोमिनेंट नाम है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मेरा इन सब चीज़ों को बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको अपने आप में ये विश्वास होना चाहिए, अपने आप में आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ हूँ तभी मैं ऊपर जा सकता हूँ। आप इन क्लाइंट्स के नाम देखिए, इसमें से 90% नाम आप लोगों ने सभी ने सुने होंगे, और इन सब के ऑडिट हम लोगों ने किए हैं, जो कि एक रूरल बैकग्राउंड, पटना बिहार से आते हैं। तो अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स स्काई इज द लिमिट। विभिन्न संस्थाओं से मेरा संबंध है। अभी राष्ट्रीय महासचिव करंट कास्ट महासभा का हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय वित्त सलाहकार समिति, कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय मैथिली साहित्य महासभा दिल्ली का। मिथिलांगन एक संस्था है, उसका मैं आजीवन सदस्य हूँ। सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट एक NGO है राष्ट्रीय लेवल की, उसका मैं कार्यक्रम समन्वयक हूँ। बिहार यंग थिंकर्स फोरम, जो कि बिहार के युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा एक संस्था है, जिसमें हम लोग बिहार के डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्रेन स्टॉर्मिंग और वेबिनार्स करते हैं, उसका मैं मेंबर हूँ। कर्ण गोष्ठी दिल्ली का मेंबर हूँ। इंटरनेशनल मिथिला डायस्पोरा है, जिसमें पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के मिथिला के लोग शामिल हैं, उसका मैं हूँ।
पंडित राजकुमार शुक्ल जब महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे, तो उस महात्मा गांधी जी को चंपारण ले जाने का सबसे जो प्रमुख योगदान महात्मा गांधी जी ने खुद अपनी जीवनी में भी कहा है, वो पंडित राजकुमार शुक्ल जी का था, क्योंकि वहाँ पे नील की खेती होती थी और उससे रिलेटेड तो पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति न्यास का तकनीकी समन्वयक हूँ मैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में तो मैंने बताया था, मेरे परिचय में कहा गया था कि मैं वहाँ का गण शिक्षक रहा हूँ। अब जो मैम आप कह रही थी नरेंद्र मोदी जी के विषय में एक कविता जो मैंने लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। विश्व पटल पर छा चुका है माननीय मोदी जी का नाम, जन्म दिवस की पावन बेला पर शुभकामनाओं सहित प्रणाम। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक था पुलवामा हमले का उत्तर, कश्मीर की खुशी के लिए हटाया विवादित अनुच्छेद 370। अपनी अद्भुत कार्यशैली से भारत की बढ़ाई है साख, मुस्लिम बहनों के उत्थान हेतु गैर कानूनी किया 3 तलाक। जीएसटी, जनधन, उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाएं कर रही विकास, आपके नेतृत्व में विकसित बनेगा देश, भारतीयों को है यह पूर्ण विश्वास। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपका नेतृत्व है एक मिसाल, शुभकामनाएं हैं जन्म दिवस पर, आपकी गाथा रहे हजारों साल। बहुत बढ़िया। बहु प्रतिभाशाली हैं हमारे आशीष नीरज जी। थैंक यू, थैंक यू, आप लोगों का आशीर्वाद है। अब जब हम लोग कॉमर्स फील्ड पे आते हैं तो एक बार मैंने आपको अपनी जर्नी बता दी, मैंने किन किन चीज़ों में मैं इंटरेस्ट रहा। मतलब मेरा एक ये कहने का तात्पर्य था कि आप सीए करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अगर आप आगे रहेंगे तो उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारी आपको अपने प्रोफेशनल चीज़ों में भी इन चीज़ों से काफ़ी फायदा मिलेगा, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कितने मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड में कहना चाहूँगा कि कितने बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किन्हीं के साथ एज ए वेबिनार में जुड़ा, एज ए स्पीकर और एज ए होस्ट में जुड़ा, और बाद में उनसे हमारा प्रोफेशनल रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। तो आप अपना क्षेत्र जितना फैलाएंगे, जितने लोगों से मिला करेंगे, जितनी नई चीज़ों को आप कर सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में काम देगी। अगर हम वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स फील्ड की बात करें तो वैसे तो बहुत कुछ है, बट जो सबसे प्रमुख है उसमें एक चार्टर अकाउंटेंसी है, ICWA है, कंपनी सेक्रेटरी है, MBA फाइनेंस, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CPA जो कि USA का CA का इक्विवेलेंट है, जो प्रोफेसर हमारे टीचिंग फील्ड जो कि सबसे बड़ा फील्ड है, और एक एक्चुअरियल साइंस है। ये मेरे ख्याल से ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आप कॉमर्स के बाद कर सकते हैं एज ए करियर। वैसे तो आपका स्काई इज द लिमिट। अगर मैं सीए कोर्स की बात करूं तो सीए कोर्स कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया फॉर सीए स्टूडेंट्स। बट मैं ये कहूँगा कि अगर CA, ICWA, कंपनी सेक्रेटरीशिप, इन तीनों ही चीज़ों के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप हार्ड वर्क तो सारे लोग करते हैं, हार्ड वर्क के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क भी करें तो CA, ICWA, कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम निकालना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि जो भी ये निकालते हैं ये एग्जाम, वो हमारे आपके तरह ही उनका भी 2 हाथ 2 पैर होता है। बस ये है कि वो अपने दिमाग का थोड़ा ज़्यादा यूज कर लेते हैं। अगर आप कभी कहीं मैंने बचपन में पढ़ा था या कहीं पे भी कि आप अपने माइंड का कितना % यूज करते हैं, उसमें था कि अगर जो लोग 10, 12, 15% भी कर लेते हैं उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाता है, साइंटिस्ट बन जाते हैं। नॉर्मल लोग 3-4% यूज करते हैं। आपको 3-4% को बढ़ा के सिर्फ 7-8% पे लाना है। अगर आप ये 7-8% भी करने लगते हैं, क्योंकि 12-13% जो पे तो लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर जाते हैं, तो आपको सिर्फ 3-4% जो नॉर्मल लोग हैं उनसे उठ के 8-9% पे अपने IQ लेवल को लाना है, अपने जो अपने मस्तिष्क को काम करने की क्षमता को बुलाना है।
डिफरेंट, ये सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। आपको एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो एम है, आपका टारगेट, वो जल्दी से जल्दी सेट होना चाहिए। मुझे सीए बनना है, मैंने ये अब क्लास छठी में डिसाइड कर लिया था। मेरे मामा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैंने उन्हें देखा कि वो मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने उन्हें देखा कि वो किस तरीके से सीए फील्ड में उनमें उन्होंने तरक्की की। तो मैं उनसे प्रभावित था, तो मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे सीए ही करना है। तो सिंपल बात है कि अगर आपने अपने लाइफ के शुरुआत में यह निश्चय कर लिया कि आपको कहाँ जाना है, सपोज आप एक ए पॉइंट पे हैं, और अगर आपने ए पॉइंट पे ही अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बी पॉइंट पे जाना है, तो आप फिर ए से बी का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपने ए से जर्नी तो स्टार्ट कर दी, जैसे कि हमारे कितने फ्रेंड्स हमारे टाइम में भी थे जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लिया था, बट वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में तक जाके भी वो श्योर नहीं थे कि उन्हें आगे क्या करना है। तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप शॉर्टेस्ट रूट की तो बात भूल जाइए, आपको बहुतों साल लग जाएंगे। लेकिन आपको अगर शुरुआत में ही पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप उस पर फोकस्ड रहेंगे और उससे रिलेटेड आप शॉर्टेस्ट रूट जानेंगे। शॉर्टेस्ट रूट का मीनिंग कितने कम समय में, कितने अच्छे प्रिपरेशन के साथ आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेज हैं उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आप सलाह, जैसे हो सकता है कि आपको सीए करने का मन हो, बट हो सकता है कि कोई लोग आपको कह दें कि नहीं नहीं, ये बहुत भारी चीज है, इसको मत करो, या ये तुमसे नहीं निकलेगा। मेरा ये कहना है कि जब भी आपको सलाह लेना हो ना, तो आप उनसे लीजिए जिन्होंने वो चीज खुद किया है। आप उनसे अगर सलाह लेंगे कि जिन्होंने उस चीज को नहीं किया है, तो उनको लगेगा कि क्योंकि वो उस चीज के बारे में नहीं जानते हैं। तो और अगर आप, मेरे ख्याल से अगर आपको सीए करना है और किसी सीए से सलाह लेंगे, तो वो आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद उस सीए कोर्स को किया है, तो उन्हें पता है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। वो आपको सही तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। जो हमारे कॉलेज के हमारे जो हमारे जूनियर्स हैं, उन सबको मैं, मेरी तरफ से ओपन ऑफर है, मैं लास्ट में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों को सीए, आईसीडब्ल्यू, कंपनी सेक्रेटरी फील्ड से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप फोन पे हो सकता है हमेशा अवेलेबल नहीं है, आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं खुद आपसे बात करके इन सब से रिलेटेड कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज में मैं आप लोगों की गाइड कर दूंगा। क्योंकि एज ए सीनियर हम सबका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जूनियर्स को गाइड करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो ये डिफरेंट कोर्स हैं। जिस फील्ड में आपको जाना है, कोशिश कीजिए कि उस फील्ड के में जो जिन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है, उनसे आप मिलिए, उनसे आप वे पूछिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और वे पूछने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस चीज को करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, या आपका क्या इनकम हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि हाँ, मैं अगर सीए बन गया तो मेरी कितनी इनकम हो सकती है। तो जब अगर आपको ये अगर पता रहेगा कि हाँ, आज के डेट में मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन कल के डेट में अगर सीए बन गया और तो मेरी 20 लाख 25 लाख रुपए की का सालाना पैकेज हो सकता है। अगर आपको ये पता होगा, तब आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे कि नहीं, अभी की लाइफ और उस समय की लाइफ, जब 2 से 3 लाख रुपए मेरे पॉकेट में आ रहे होंगे हर महीने, उस समय में मेरी लाइफ कैसी होगी। तो आपको उससे होने वाले रिजल्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। वो आपको और मोटिवेट करेगा कि नहीं, मुझे और मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि मुझे नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे वो जिंदगी जीनी है जो एक अच्छे सोसाइटी में अच्छे लोग जीते। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। CA CSCW एग्जाम्स के बारे में मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका स्टडी शेड्यूल, ठीक है, स्टडी शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। कुछ लोग ये CSS में लोग मानते हैं कि नहीं, हर सब्जेक्ट का कोचिंग लेना जरूरी है। इस चीज़ में मैं आप लोगों को राय देना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के ट्रैप में मत फंसिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ कोचिंग और ट्यूशंस के बिना सीए नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। मान लीजिए सीए फाउंडेशन से सीए फाइनल तक में हमारे पास 18 सब्जेक्ट थे मेरे,
जिसमें मैंने फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट का कोचिंग लिया, इंटर में एक सब्जेक्ट का कोचिंग लिया और फाइनल में 2 सब्जेक्ट का कोचिंग लिया। तो 18 में से मैंने भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट का कोचिंग लिया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट का कोचिंग लेना हो। जरूरत है कि आप उस जो कोर्स है उसको अच्छे से समझिए। जिस चीजों सब्जेक्ट का मैं कोचिंग नहीं ले रहा था, उसके लिए मैंने क्या किया हुआ था कि 2 बुक रखी हुई थी। 2 बुक रखी हुई थी, ये दो डिफरेंट ऑथर्स की, ताकि अगर एक से समझने में दिक्कत भी हुई, मैं टेक्स्ट रीड किया करता था, एक से समझने में दिक्कत भी हुई तो दूसरा जब मैं पढ़ लेता था तो वो मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। तो आप भी, अगर मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है और आप हर सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है कहीं कहीं, तो आपको भी इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि आप कोई भी 2 ऑथर के बुक लें और उस पे आप चैप्टर वाइज जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक ऑथर के बुक से आपने पढ़ ली फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड ऑथर के बुक से पढ़ लीजिए। उसके बाद अपना टेस्ट खुद लीजिए, क्या इस चैप्टर से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसको जवाब देने की स्थिति में हूं या नहीं। अगर आप खुद में सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, ओके, अब इस चैप्टर से तो मुझे कोई भी प्रश्न किया जाए मैं ये जवाब दे सकता हूँ, तभी आप सेकंड चैप्टर पे जाइए। तो आप मैं ये कहूंगा कि आप 100% सिलेबस करें, ये जरूरी नहीं है। 100% सिलेबस करें और आप 30% भी रिकॉल नहीं कर पाए, 40% भी रिकॉल नहीं कर पाए, उससे अच्छा है कि आप 80% ही सिलेबस करें, बट इस तरीके से करें कि उस 80% सिलेबस में से जो आता वो आप कर सकें। मैं एक इसमें ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब मैं फाउंडेशन में था, तो उस समय में मेरे पास 12 में मैथ्स नहीं था एज ए सब्जेक्ट, लेकिन सीए फाउंडेशन में मैथ्स एक सब्जेक्ट होता था, ठीक है। तो उसमें मैंने फिर अपने आप को इस तरीके से तैयारी की थी कि मैंने मतलब मैथ्स को की तैयारी की, 50 मार्क्स का वो होता था। तो मैंने जब मैं वो तैयारी कर रहा था 50 मार्क्स का वो पेपर, तो उस समय में मैंने देखा कि एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके एक मैथ टॉपिक था, जो कि मुझे समझ नहीं आता था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मैंने कितनी बार कोशिश की, फिर मैंने देखा, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए, तो मैंने देखा कि मैक्सिमम जो वो क्वेश्चन आया है 8 to 10 मार्क्स का आया है 50 में से। तो मैंने क्या किया कि उस टॉपिक को छोड़ के मैथ्स और स्टैट्स के जितने टॉपिक्स थे उसको इस तरीके से कर लिया कि मुझे इन टॉपिक्स में तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वो पूछ दे तो मैं कर सकूं। जब मैं एग्जाम में बैठा उसमें भी यही हुआ। 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का था, उसे मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। 40 मार्क्स का मैंने पेपर किया, मुझे 39 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जो भी पढ़ें उसको इस तरीके से पढ़ें कि उस टॉपिक में तो आपकी प्रोफिशिएंसी हो गई, उस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। अपना जो आप टारगेट बनाइए, एक डायरी लीजिए और डायरी में आप अगले 1 महीने का शेड्यूल बनाइए कि हाँ, मुझे डेली 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट में भी क्या पढ़ना है अगले 1 महीने, उस चीज को आप नोट डाउन कीजिए कि हाँ, मुझे फर्स्ट डे 2 घंटे में ये टॉपिक पढ़ना है, सेकेंड डे मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। उससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अगर सपोज आपने अगले 1 महीने का प्लानिंग कर लिया कि डेली मुझे इतने इतने देर पढ़ना है, किसी दिन आप अचानक मूवी चले गए, किसी दिन आप मैच देखने लग गए, तो अगर आपने वो लिख रखा हुआ था कि मुझे क्या पढ़ना है इस दिन इतने तारीख को, तब तो आपको अपने लॉस का पता चलेगा, तो आप उसको अगले दिनों में एक्स्ट्रा टाइम देके उस लॉस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज को लिख के नहीं रखा था तो आपका वो जो टाइम लॉस्ट हुआ 4 घंटा, उसमें आपने क्या क्या लूज किया वो आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे ये जरूरी ये भी चीज है कि आप अपना जो अगला 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का शेड्यूल है उसको आप लिख के रखें और फिर जैसे जैसे वो होता जाए आप उसे टिक मारते रहें। सीए के फाइनल के एग्जाम से पहले 3 टाइम रिवीजन करें, मतलब इस तरीके से बनाएं कि 2 महीने में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाए, फिर 1 महीने में सेकेंड रिवीजन हो जाए, लास्ट 15 डे में थर्ड रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले।
स्टडी मटेरियल, सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। कुछ लोग कुछ बच्चे जो एक्चुअली सीए के जो एग्जाम्स होते हैं, अगर वो 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें पासिंग मार्क्स 40 होता है और एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स लाना होता है वो ग्रुप क्लियर करने के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हाँ सर हमने तो पूरे क्वेश्चंस किए थे, अटेम्प्ट किए थे, फिर भी हमने अपने तरफ से सोचा था कि हमें 70 नंबर आ जाएगा, 80 नंबर आ जाएगा मुझे, लेकिन हमें 30 नंबर 35 नंबर आया है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसके बारे में मैं सबसे जो जरूरी चीज़ है वो ये कहना चाहूँगा कि आप तैयारी किसी भी बुक से करें। ठीक है, समझने के लिए आप कोई सा भी बुक ले लें, किसी भी ऑथर का बुक ले लें, बट जब आप आंसर लिखें, अगर उसमें आंसर के जहां पॉइंट्स लिखने होते हैं, सपोज किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है या कुछ, वो आप जो सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल हैं उनसे लिखें। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर्स होते हैं उनको जो क्वेश्चन सेट के साथ एक सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइड किया जाता है और उसमें ये भी दिया होता है कि अगर बच्चे ने ये लिखा है तो आप हाफ मार्क्स दीजिए, ये लिखा है तो आप 1 मार्क्स दीजिए। तो वो जो प्रिपेयर्ड होता है वो स्टडी मैट के बेसिस पे प्रिपेयर्ड होता है। आपने अगर किसी प्राइवेट ऑथर के बुक के पॉइंट्स लिख दिए तो आप प्रॉब्लम समझिए कि वो जो प्राइवेट ऑथर हैं उनकी चीज़ों को आप समझने के लिए यूज जरूर कीजिए, बट जो सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है उसको वो प्राइवेट ऑथर एज इट इज, अगर मान लीजिए कोई 5 पॉइंट लिखा हुआ है किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक में, वो प्राइवेट ऑथर उस 5 पॉइंट को एज इट इज नहीं छाप सकते हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। तो वो प्राइवेट ऑथर क्या करेंगे, सीए इंस्टीट्यूट के 5 पॉइंट को लेंगे, अपने तरफ से 5 पॉइंट उसमें मिक्स कर देंगे और उसको सारे को मिक्स करके 10 पॉइंट आपको दे देंगे। आपने कहा कि अच्छा इसमें तो बहुत अच्छे से 10 पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन आया 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, आपने उस प्राइवेट, क्योंकि आपने स्टडी मटेरियल देखा नहीं है, आपने उस प्राइवेट ऑथर के बुक से पहले के 5 पॉइंट लिख दिए। अब एक्चुअल में क्या हुआ, आपने तो उसमें से 5 पॉइंट लिख दिए, आपने जब अपना इवैल्यूएशन किया आप सोच रहे हैं कि इस 5 मार्क्स में मुझे 5 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि उस 5 में से स्टडी मटेरियल के 2 ही पॉइंट थे। तो अब जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आपको मात्र 2 मार्क्स मिलेगा, आपका अपना इवैल्यूएशन आपको जहां पे 5 मार्क्स दे रहा था वहां 2 मार्क्स मिलेगा और इस तरीके से बच्चे को कम मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज की ज्यादा जरूरत है कि आप स्टडी मटेरियल पे ज्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सीए सीएस ICAA इन सब में आर्टिकलशिप का एक प्रोविजन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम डमी ले लेंगे तो हम ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा तैयारी के लिए टाइम मिल जाता है, बट आप इंटरव्यू में पेशर जाइएगा कि क्योंकि आर्टिकलशिप में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि आपको आपके पढ़ाई में भी काफ़ी कुछ मदद करती है। अगर आपने आर्टिकलशिप सीरियसली किया है तो जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है आपको, उसमें से 50% से 60% चीज़ें तो आपको इतनी इजीली याद हो जाएंगी, क्योंकि उसे प्रैक्टिकली आपने किया हुआ होगा। इनकम टैक्स के प्रोविजन हैं, अकाउंट्स हैं, उन सब चीज़ों को आपने अगर आर्टिकलशिप में किया हुआ है किसी सीए के अंडर तो आपको इजीली वो चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने आर्टिकलशिप सीरियसली नहीं किया तो फिर क्या है कि वो आपके लिए एक अननोन टेरिटरी टाइप की चीज होगी, तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल आपको पता नहीं है। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने जो है आर्टिकलशिप जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। तो अगर आप सीए CS CAA कर रहे हैं तो आर्टिकलशिप पे भी जरूर ध्यान दें। इसके साथ ही मैं आप सबको को धन्यवाद कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल से समय भी धन्यवाद आशीष जी। मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज किया। मैं अब डॉक्टर अर्चना को बुलाना चाहूंगी जो हमारी कन्वीनर हैं एलुमनाई एसोसिएशन की, और वो मैंने इसलिए डेलिबरेटली चेंज किया कि अब वो आशीष को अच्छे से जान गई हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो 2 शब्द अपने उनको ब्लेस करने के लिए बोलें। डॉक्टर अर्चना, क्योंकि जनरली हम पहले बुलाते हैं और हमारे डिपार्टमेंट। हाँ जी continue. Let him continue. I'm enjoying his talk. Let him. अर्चना, उन्होंने अपनी बात समाप्त कर ली है। मैं चाहूंगी आप भी 2 शब्द बोलें अब, क्योंकि अब आप उनको पहचान गई हैं, आप उनको समझ गई हैं कि हमारे कितने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं आशीष जी। सो उनको ब्लेस करिए आप। Thank you.
And first of all, I would like to congratulate the Department of Commerce for inviting such an enlightened speaker. And बहुत अच्छा नीरज जी ने आशीष नीरज जी ने बताया about goal setting, and he has given lot of practical tips for the students. बहुत ही सही बात है, ये हम भी जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं, बट आज इन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म पे बताया कि जो बच्चे अपने मार्क्स लगाते हैं वो थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन से लगा लेते हैं, बट जो टीचर्स जो उन्हें कीज मिलती हैं, ही इज राइट, ही सेड जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उन्हें की मिलती है, उसके अनुसार उनको मार्क्स देने होते हैं। तो एक्चुअली अगर आंसर परफेक्ट होगा तभी उतने मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज बच्चा पजल हो जाता है और बच्चा यही सोचता है कि हमको दिए नहीं मार्क्स, मतलब अच्छा नहीं है सिस्टम, ठीक से नहीं चेकिंग होती, बच्चे ये सोचते हैं, बिकॉज टीचर्स हैव बीन स्टूडेंट्स वंस, so we understand, but students have never been teachers, so they don't understand this thing. तो बहुत अच्छी बातें बताई आशीष जी, और एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप कितना अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं. यू आर एन एग्जाम्पल वर्थ एम्यूलेटिंग फॉर एवरीबडी, एंड लॉट ऑफ टीचर्स आर आल्सो हियर. I would like to say that we are going to, because it's being recorded, so we'll edit it a bit because शुरू में थोड़ा सा waiting time आ गया था, तो उसके बाद we will put this your video in our college YouTube channel. It will be available by your name. And जो भी बच्चे अब ड्यू टू दिवाली वगैरह नहीं अटेंड कर पाए इसको, तो क्योंकि कुछ कंपल्शंस भी हो सकती हैं, तो वो लोग जो हैं कभी भी रिविजिट कर सकते हैं, आपकी टिप्स पा सकते हैं. And I'm happy to have Professor Garg back with us because he is managing to be present in 2 events going on simultaneously. Professor Garg, thank you again for coming and gracing this occasion. It means a lot. Your presence means a lot. Thank you, madam. Thanks a lot, madam. Thank you. Yes, sir. So that is all that I wanted to say, and I'm very impressed with the way our CA Sahab has very successful, and he has managed to put the points across to the August audience. So wish you all the best. Wish you a great festive season, and congrats, Commerce Department. Very proud of you, Dr. Renu, Miss Chanchal, Dr. Jalwani ji, जो कि TIC हैं. And over to you back, Dr. Renu. Thank you. Thank you so much, Archana. आपके ये सब कहने से हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ता है, और मैं बहुत ज्यादा जानती थी आशीष को, लेकिन इतना नहीं जानती थी. आज तो मुझे सुनकर और भी अच्छा लगा कि वो इतनी प्रतिभाशाली हैं. और जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अब हम इन्हें एक्सपर्ट लेक्चर्स के लिए भी इनवाइट करेंगे. हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे इनके लेक्चर से, जीएसटी पर, करियर काउंसलिंग पर, और भी इनके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं. So thank you so much. Now over to Chanchal. You can take up. If anyone wants to ask any question, please post your queries in chat box, or you can interact directly with Ashish ji by unmuting yourself. टीचर्स भी कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं आशीष के साथ तो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा. हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे टिप्स दिए इन्होंने, और मैं भी जनरली अपनी क्लास में यही, तो मुझे ऐसे लग रहा था रिवीजन हो रहा है कि हम भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि हमारी कमेटी होती है एग्जामिनेशन, और वहां पर जो पॉइंट्स मिलते हैं वैसे ही लिख कर आना चाहिए सेम. बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत क्रिस्प वे में सब चीजें एक्सप्लेन करी. Thank you. I have a question. If nobody else is asking, sorry, Jalwani ji, please go on. आप बोलिए, please. Okay. नमस्कार सभी को, और आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद. बच्चों के लिए आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरी बताई. और मेरा एक क्वेरी है, वैसे जैसे आपने कहा कि मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंट के रूप में आपने काम किया है, तो मेरा ये मतलब जनरली ये जानना चाहता हूँ कि जो इन ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसपेरेंसी का लेवल इंडिया के हिसाब से कितना है ना, दूसरे ऑर्गेनाइज जैसे और फॉरेन का आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इसमें कितना है ट्रांसपेरेंसी का,
हमारे इकोनॉमी के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ बस। सर देखिए, जो भी बड़ी कंपनीज हैं जिनका भी मैंने नाम लिए हैं, ठीक है सर, तो हम लोग तो वहाँ एज ऑडिटर जाते हैं। तो जब हम लोग एज ऑडिटर जाते हैं तो हम लोगों को सारी चीज़ें पूछने का राइट होता है, ठीक है। तो हम लोग सारी चीज़ें पूछते हैं, कुछ कमी अगर लगती है हमें, ठीक है, तो हम उसको मैनेजमेंट को पॉइंट आउट करते हैं कि सर हमारे ख्याल से ये 10 चीज़ों में प्रॉब्लम है। फिर वो मैनेजमेंट के सामने जो ऑडिट कमेटी होती है वो बैठती है और हम लोग अपना पॉइंट्स देते हैं कि हाँ हमें ये 10 पॉइंट में प्रॉब्लम लगता है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों को अपने ओर से उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें लग रहा था कि गलत है, बट जब वो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हमें समझ में आता है ओके बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेज और बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशूज ये हुआ, और उसका वो इम्पैक्ट बता देते हैं हमें कि देखिए इसका ये इम्पैक्ट यहाँ पे ठीक हो गया है। तो हम हो सकता है उसमें से काफ़ी सारी हमारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाती हैं। फिर जब वो क्वेरीज रिजॉल्व हो जाती हैं और फिर मान लीजिए 10 में से 8 क्वेरी रिजॉल्व हो गई, 2 पे वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं या 2 पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये उनकी मिस्टेक है, तो फिर उसको हम लोग अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल देते हैं। हम 8 का नहीं डालते, हम सिर्फ उस 2 का डालते हैं कि हाँ इफ वी आर क्वालिफाइंग आवर रिपोर्ट, तो हम लोग किस बेसिस पे उस रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं वो चीज हम डालते हैं। तो एक तरीके से जब पब्लिक के पास वो आता है तो आफ्टर ऑडिट वो रिफाइन होके आता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, अब जहां तक आपने सर ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो कुछ ऐसे पास्ट में इवेंट रहे हैं, हाँ, जिससे कि जो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो या फिर कोई स्कैम हो गया हो, तो वो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ऑडिटर एज अ वॉच डॉग टाइप से कहा जाता है, तो हम जाते हैं, हमें 10 दिनों में पूरे साल का ऑडिट करना होता है। तो हम अपने तरफ से तो कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक चीज़ों को देख लेंगे, बट 100% चीज़ों को देखना पॉसिबल उस 10 दिन में नहीं होता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि नहीं, हमने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की है, मैनेजमेंट ने हमें लिख के दिया है सब कुछ ठीक है, हमने अपने तरफ से टेस्ट चेक बेसिस पे किया है, कुछ चीज़ों को टेस्ट चेक बेसिस पे करते हैं, कुछ चीज़ों को पूरा करते हैं। उसके बाद भी कभी कभी हो सकता है कि हमारी कोई चीज़ किसी चीज़ पे ध्यान नहीं गई हो, तो उन सब चीज़ों के चलते कभी कभी रह जाता है। तो उन सब चीज़ों को फिर जो आगे अथॉरिटीज हैं वो भी समझती हैं कि हाँ इन्होंने अधिकतर चीज़ों को तो पॉइंट आउट किया है। तो सर ओवरऑल इंडिया में अगर देखें तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं और उन जो MCS अप्रूव कंपनी है, उन सब में तो कंप्लायंस का लेवल अच्छा है। इशू सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है। इस चीज़ को संभालने की जरूरत है अगर हम अपने देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। कईयों लोग होंगे सर जो कि 50,000 लाख रुपए इजीली कमाते हैं, सब्जी वाले या छोटे छोटे दुकान वाले भी, बट वो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक है। जबकि एक सैलरीड पर्सन अगर 6 लाख का भी 50,000 भी कमा रहा है तो उसको टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसका TDS डिडक्ट हो जा रहा है। बट जो 12 लाख रुपया भी कोई बिजनेसमैन कमा रहा है, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा है। और ये रीजन है कि हमारा जो GDP हमारे साइज के हिसाब से हमारी GDP नहीं है। तो उसके लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन लोगों को खुद से ऑनेस्ट बन के आगे आना पड़ेगा, तो फिर सर देश प्रोग्रेस कर। थैंक यू नीरज, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं यही जानना चाह रहा था कि देखो हमारी इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतना बड़ी कंट्री है, लेकिन टैक्स के हिसाब से हम कहीं कहीं पिछड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। हाँ, थैंक यू। और आप जैसे लोग ही इस चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे तो ही सारी चीज ठीक होगी, और हमारे गवर्नमेंट का भी यही गोल है ना। जी तो जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ आशीष, आपने बहुत सरलता से समझाया, सिंप्लीफाई करके, क्योंकि आप जो भी कॉमर्स को बिलोंग करते हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज भी समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हम ये चीज ले पर्सन्स को नहीं ले जाएंगे तब तक हमको कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशंस। सो आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, यू आर सो यंग एंड स्टिल you have the wisdom and maturity of more experienced person also. Thank you. Now I also have I wanted to ask you, आपको तो पता ही है कि 1.5-2 साल से सभी कुछ ऐसे हो गया, चेंज हो गया और ऑनलाइन मोड पे सब जाने को मजबूर हो गए, कहीं ना कहीं उत्साह की कमी भी हो गई
हमारे में ही हो गई तो बच्चों में कितनी हो गई होगी। बच्चे सभी कन्फाइंड हो गए और बहुत सारे मिसहैप से भी सब जूझे हैं। हमारी आसपास के बहुत सारे लोगों की हमने सफरिंग देखी है, बहुत कुछ देखा है। तो अब दोबारा ठीक से कैचअप हो रहा है सब कुछ। तो आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे टू मल्टीप्लाई देयर एंथुजियाज्म एंड हाउ टू व्हाट टू थिंक, हाउ टू प्लान योर लाइफ, व्हाट ऑल ऑप्शंस टू कंसीडर। वन मोर थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट, आपने बोला रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे तो उत्साह आएगा, बिकॉज इंसेंटिवाइज कर रहे हैं आप कि हमें ये करने से हमारा जीवन कैसा होगा। बिल्कुल। मुझे तो अपने फादर की याद आ रही है जो यही कहते थे हम लोगों को, उस वजह से हम लोग पढ़ते थे। तो अब आपको और कोई जनरल टिप्स देनी हो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स या इन जनरल एनीथिंग, whatever strikes you, whatever you would like to share with the future of our nation, even younger than you, and even we would love to listen. So this is what I wanted to ask you. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है। देखिए, जो कोरोना का समय था वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, किसी ने हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं था। हमने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी हम लोगों ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका जैसे कंट्री में इतने लाखों लोग मर जाएंगे। हम लोग कहते थे पहले बचपन कि अमेरिका भारत से 50 साल आगे है, वहाँ पे भी वही स्थिति थी। ठीक है, वहाँ पे भी 3-3 महीने 6-6 महीने सब कुछ बंद था। इंडिया में सब कुछ बंद था, कभी हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था। तो स्थिति बुरी थी, ये हमें मानना पड़ेगा। और उस बुरी स्थिति में जिस तरीके से लोगों ने सरवाइव किया, ठीक है, वो बहुत चैलेंजिंग था। हम लोगों ने भी डिफरेंट एनजीओ की तरफ से डिफरेंट लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की, अपने तरफ से हम लोगों ने बहुत कोशिश की। और ये सब मतलब सब लोग आगे आए, कोई हर लोग अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे थे। और एक चैलेंजिंग फेज तो था। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दो चीज, कि एक उस चैलेंजिंग फेज में भी कुछ लोगों ने उसको एज अपॉर्चुनिटी लिया। ठीक है, आप जब किसी आप अगर मुश्किल में भी अपने आप में कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना, क्योंकि कभी कभी मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको ये एक होता है लोगों को लगे कि नहीं ये से बोल रहा है, और मैं आपको एग्जांपल देके समझाना इसलिए चाहता हूँ कि देखो मैंने ये किया, ताकि ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो अभी आपको अपने पास्ट अभी पिछले स्लाइड्स दिखाए थे कि मैंने क्या क्या किया, उसमें से जो अधिकतर जो इवेंट्स हैं पिछले 2 साल में हुए ऑनलाइन इवेंट्स, उसमें मुझे खुद नहीं पता था कि जब कोरोना आएगा तो उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के मैं वेबिनार कर रहा हूँगा। ठीक है, तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी तो मैंने एज ए होस्ट अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मैं कम से कम 2500 अलग अलग संस्थाओं के वेबिनार में एज ए होस्ट गया। ठीक है, जिसमें चीफ मिनिस्टर से लेके सेंट्रल मिनिस्टर्स, डिफरेंट पॉलिटिशियंस, वाइस चांसलर्स, हर तरीके। तो मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। तो पहली बात है कि आपको मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी आनी चाहिए। मैं एक छोटा सा ऐसा है कि जब मैम ने मुझसे ये इस इवेंट का फ्लायर शेयर किया था तो कल परसों मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला था। उसमें एक कमेंट है, शायद मैम सुप्ति मैम शायद देखेंगे वो, उसमें उन्होंने लिखा है कि आशीष जी आपको भी नहीं पता है कि पिछले 2 सालों में आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर होस्ट्स में से एक हो गए हैं, और ये आपने भी नहीं सोचा होगा कि 2 साल में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। और वो जिन्होंने लिखा है वो खुद दिल्ली बीजेपी में अच्छा पोस्ट रखते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि कोविड के चलते जो स्लो डाउन आया था, तो क्योंकि देखिए हम लोग जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस मंथ का जो सेल है, उस मंथ के सेल पे हम जीएसटी का आउटपुट बताते हैं कि ओके इस मंथ के सेल पे आपका इतना जीएसटी लग रहा है, वो मंथली हम लोग पे करवाते हैं। कोविड के टाइम में ये डिप आया था 50%, 40%, 20% तक कुछ क्लाइंट्स के एवरेज सेल के कंपैरिजन में पहुंच गया था। बट मैं आप लोगों को पूरे तसल्ली के साथ बताना चाहता हूं कि जो 2 साल पहले लेवल था, हमारे 90% क्लाइंट्स का सेल फिर उसी लेवल पर पहुंच गया है। 90% क्लाइंट्स का, सिर्फ 2-4-5% जो बहुत छोटे क्लाइंट्स थे जिन्होंने बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि वो उस आर्थिक तंगी को नहीं झेल पाए, वो तो एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बट 90% क्लाइंट्स
के जो सेल के लेवल थे वो दोबारा उसी लेवल पे पहुंच गए हैं। तो चूंकि वो दोबारा उसी लेवल पे पहुंच गए हैं, तो अगर बीच में छटनी हुई थी कर्मचारियों की, तो फिर से अब नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं डिफरेंट, तो मतलब सब कुछ सेम लेवल पे आपको पहुंच गया है। आप देखिए सेंसेक्स आज से 2 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स तो जो मार्केट का वैल्यूएशन है कंपनीज का, वही है। तो अगर आज मार्केट सेंसेक्स वहां पे है, अगर कंपनीज लॉस में रहती तो सेंसेक्स यहाँ होता नहीं। यानी कंपनीज ने दोबारा वो पॉइंट्स रिकवर कर लिया है 90% में। नहीं तो आप लोगों को इस चीज से अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग जो भी चीज कर रहे हैं, जिस फील्ड में जाएं, अधिकतर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है और इवन कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है। एक चीज और, जैसे मैम ने कहा कि एक जनरल फील्ड की अगर बात आपसे शेयर करना चाहें, तो मैं लोगों से कहूंगा कि आपको जो कोरोना ने सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो लोगों को सिखाई है कि आपको सेविंग की आदत होनी चाहिए। जो नॉर्मली लोग होते थे पहले, अगर वो 30,000 रुपया कमा रहे हैं तो वो 30,000 इस तरीके से खर्च कर लेते थे कि 24-25 तारीख आते आते उनके पास 500 रुपये 200 रुपये उनके पास अकाउंट में बचते थे और वो 30 तारीख का 29 तारीख का वेट करते थे। कोरोना के चलते अब लोगों में ये एक थोड़ी सीरियसनेस आई है कि नहीं, मेरे पास कम से कम अगले 2 से 3 महीने का तो सेविंग होना चाहिए। तो आप कितना भी कम क्यों ना कमाते हो, आप 10,000 कमाते हो, मैं आपसे कहूंगा आप कम से कम उसमें से 500 रुपया 1,000 रुपये कुछ ना कुछ सेव जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये कोरोना जैसी स्थिति आ गई, पूरी दुनिया बंद हो गई, तो ये दोबारा भी आ सकती है। आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगले 5 साल के लिए आप सेविंग कर सकते हैं, ठीक है, वो मुश्किल चीज है, बट आपके पास अगले 2 से 3 महीने 4 महीने का आपके पास इतना होना चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स में कि अगर भगवान न करे फिर से ऐसी स्थिति आई, क्योंकि देखिए ये तो एक वायरस था, ये वायरस दोबारा कोई दूसरा वायरस नहीं आ सकता है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है कि कभी आज कहा जा रहा है कि शायद चाइना से आया, कल कोरिया से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो मीन्स अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं। तो इसलिए आपको सेविंग की आदत, आप अगर जॉब में जाएं कल के डेट में तो कुछ ना कुछ सेव जरूर कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ ठीक है, अभी आपके माता पिता ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी होगी, ठीक है, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाए, पर तब भी आप अगर चाहें तो उसमें से 10-20% आप बचा सकते हैं, जो कि आपको मुश्किल के समय में जरूर काम देगा। इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे से समझाई ये बातें। और मैं तो हैरान हूँ कि इतनी छोटी एज में ये सब आता है और हर चीज की क्लैरिटी है आपको। तो ऐसे ही संभला हुआ जीवन सबका हो आपको देखकर। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब जैसी चीजें होती है उसी हिसाब से इंसान अपने आप को आगे बढ़ाता है। और वाकई इस जो पिछला टाइम बीता है, एक तो जो आपने बातें कवर की, सच है, मैंने भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए अपना एक मोटिवेशनल चैनल खोला जो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो उसी वजह से खोला, अदरवाइज ये चीजें पहले भी आती थी हमें। नाउ एक और मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स कि इतना होने पर भी हम सेफ हैं। अगर हम हैं तो आज लाइफ कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, टुडे कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो ये जो जज्बा है, जीवनी शक्ति है, और जो आपने बहुत प्रेरणा दी, बहुत ही आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत अच्छा आपने समझाया। थैंक यू मैम। स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको एक बुलाने का और भी था कि ही इज फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, छोटे शहर से आके हिंदी मीडियम बीकॉम प्रोग्राम। बच्चों को बहुत ज्यादा वो होती है कि हम अगर बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे तभी हम सीए बन सकते हैं, अगर हमारी इंग्लिश, हमने सारी स्कूली एजुकेशन इंग्लिश से करी होगी तो हम बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या हमारी तो ये इन सब चीजों को पार करते हुए, और आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू आशीष। मैं आप समझ नहीं सकते कि मैं कितनी आज खुश, अच्छा लग रहा है मुझे कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। रियली आई एम वेरी प्राउड। यू हैव टू बी अ टीचर टू नो दैट। या एंड आल्सो मैं इसी डॉक्टर रेणु की बात से ही आगे मुझे ये कहना है कि आप जैसे बच्चों से ही कॉलेज की शोभा है। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छा, वी आर वेरी प्राउड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही समझदारी को बढ़ाते रहिए, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आगे भी हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम जरूर बुलाएंगे। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू। So you can proceed, Chanchal. Okay, ma'am. Shall I proceed to vote of thanks now?
हाँ हाँ, एक बच्चे ने शायद क्वेश्चन पूछा, आप देखो. Yes, there is a question from a student. How to handle both course CA and BCom program? कि अगर दोनों कोर्सेज बीकॉम प्रोग्राम में भी स्टूडेंट इनरोल है और वो साइड बाय साइड सीए भी कर रहा है, तो किस तरीके से उस चीज को मैनेज करे? देखिए, मैं आप इसमें यही कहना चाहूँगा कि सीए का जो कोर्स है, ठीक है, उसमें और आपका जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, उन दोनों में ऑलमोस्ट 70% जो सब्जेक्ट्स और 70% जो कोर्स कंटेंट है वो सेम है, ठीक है। तो अगर आप जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप सीए का, चूंकि सीए का थोड़ा सा सेम चीज ग्रेजुएशन में जो है सीए में उसका थोड़ा एडवांस्ड है, तो अगर आप जो सीए वाला है चूंकि आपको सिर्फ 30% जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ग्रेजुएशन में वही पढ़नी है, बाकी चीज जो 70% सीए में है और ग्रेजुएशन में भी है, तो वो आप सीए वाले पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सीए मान लीजिए इनकम टैक्स का मान लीजिए सैलरी पढ़ रहे हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने उसके सीए वाला कोर्स कर लिया तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन वाला उससे थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर ही है, तो आपका वो भी तैयारी साथ ही हो जाएगा। सिर्फ आपको जो 30% जो चीज वहां नहीं है, जैसे इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि वहां नहीं है, उन पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। 70% चीजें सेम है, तो आप सीए वाला वो 70% सीए वाला सिलेबस पे ध्यान दीजिए, तो आपका पूरा दोनों चीज बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकल जाएगी। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? Ma'am, shall I proceed to vote of thanks now? Yes, Chanchal. Okay. To conclude with today's session, I, Chanchal Rajora, would like to thank our Honorable Principal Professor Praveen Garg sir for his constant support and motivation he provides us in organizing alumni talks and webinars for college. Thank you, sir. I am also thankful to our guest, CA Ashish Neeraj, for sharing his beautiful journey with us and for a very lively session. I would also like to extend my sincere thanks to very hardworking and dedicated conveners of Alumni Association, Dr. Archana ma'am and Dr. Namrata ma'am, for their tireless efforts. I am also thankful to all the other members of Alumni Committee, Dr. Manish sir, Dr. Ranjan sir, Dr. Nitin sir, and Akansha ma'am. My sincere gratitude to Dr. Renu Sopte ma'am, co-convener of today's alumni meet, for her huge support. Thank you, ma'am. A special thanks to our respected Dr. D.R. Jalwani sir, HOD of Commerce Department, for his support and guidance. I also like to take a moment to acknowledge and thank all my respected senior faculty members for their support, blessings, and presence in today's session. I am also thankful to wonderful and enthusiastic audience who made this event a success. Thank you so much, everyone. Have a beautiful day ahead. Thank you. थैंक यू आप सब।